Once again, a very warm welcome to the English world of Aradhya. Students, we are taking the lesson Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. In that we had seen till the time when the people are taking the pledges. Okay, Mr. D. Clark, Mr. Thabo Mbeki and Nelson Mandela taking the pledges as second vice president, first vice president and the president of South Africa respectively. Now we will continue with his speech on this particular day, which speech was given by Nelson Mandela. See, he begins with, I said, today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty, because they have remained slaves for 300 years. So this is their newborn liberty. Liberty means freedom. Okay, so we confer means we give out of the experience of an extraordinary human disaster. Now what is this extraordinary human disaster? This extraordinary human disaster is nothing but the policy of apartheid adopted by the white people that lasted too long, that lasted for more than 80 years. Okay, too long, must be born a society of which all humanity will be proud. ओके, तो ऐसी स्थिति में से बाहर आते हैं. ओके, इसमें से तुम्हें जब लिबर्टी मिलती है, फ्रीडम मिलता है, तो ऐसा समाज बनेगा, क्योंकि सबने ये सफरिंग सहन किया है. सो नाउ द सोसाइटी वुड बी बोर्न, such a society will take place which will be proud of its being into existence. We who were outlaws not so long ago, okay, outlaws, students here means it seems that their country was adopting the policy of apartheid, so the other countries of the world had just broken all the relationship with South Africa. That's why they were considered as outlaw. Okay, all the diplomatic relationship with South Africa was broken by all the countries of the world. So that's why other countries of the world were considering South Africa as outlaws. Now that was because of the policy of the British, apartheid policy of British, in that black people did not have to do anything. But since black people were not in power, they also suffered. Okay. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege, yani rare honor, to be the host to the nations of the world on our soil. Okay, the political leaders and dignitaries of 140 countries have gone over there. So they are guests. And who are the hosts? The people of South Africa. Okay, Nelson Mandela and his team of cabinets, they are the host. So all the South African people over here are hosts, and the people, political leaders and other dignitaries who have gone there, they are the guests. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. Okay, students, when the policy of apartheid was abolished, after that, democratic elections were held, and in that South African Congress Party won. As a result, Nelson Mandela became the first black president of South Africa. So what he considers this entire episode as the common victory for justice, for peace and for human dignity. They were fighting for all these virtues. Okay, we have at last achieved our political emancipation. Emancipation means freedom from restriction. Finally they got. And India played a major role, students. These elections were held in 1994. Okay, and India helped them to make the entry in the international cricket. Okay, they were banned from the international cricket also, students. Earlier South Africa was playing international cricket, but because of the policy of apartheid, all the countries broke all the relations with them. So those years, say 1960 onwards till 1992, they were not there in international cricket. Then India helped them to make the re-entry in 1992. And afterwards they played that 1992 World Cup.
and they played very nicely. So all these years they suffered, they could not make their names in the international cricket because of the policy of apartheid which was adopted by the white people over there. So students, here he says that we have at last achieved our political emancipation. Okay, political freedom we have got finally from all this restriction. Now the countries of the world are having trade with us, having all sorts of relations with us. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty. Now politically they are free. Now no other country is ruling over them, but they are still the slaves of what? गरीबी के गुलाम हैं, poverty, डिप्राइवेशन यानी स्कैरसिटी, कई चीज़ें मिलती नहीं है, उसके वो गुलाम हैं अभी. सफरिंग यानी दर्द, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, अभी वहाँ चलो नहीं होता है, ये भेदभाव नहीं होता है, जाति भेदभाव या वंश भेदभाव नहीं होता है. बट इन अदर कंट्रीज इफ दे गो, द अदर कंट्री पीपल स्पेशली वाइट पीपल मे हैव दिस डिस्क्रिमिनेशन फॉर देयर पीपल इन द वाइट कंट्रीज, इन द कंट्रीज वेयर वाइट पीपल रूल. तो वहाँ उनके साथ भेदभाव होता है. तो ये क्या बोलता है कि वी प्लेज आवरसेल्व्स, हम ये कसम खाते हैं, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी. वहाँ ये वाइट लोगों ने चलो ये तो दे दिया, उनकी पार्टी बन गई, फ्रीडम उनको मिल गया. बट सेम वॉज द सीन ओवर हियर इन इंडिया. द ब्रिटिशर्स लूटेड वॉट एवर दे कुड. फिर जब हमको फ्रीडम मिला तो फ्रीडम के बाद हमारे यहाँ हालात कैसे थे? इनफ ग्रेन नहीं था, फूड ग्रेन्स. आज़ादी के शुरुआत के सालों में हमको दूसरे देशों से ये फूड ग्रेन्स, मिल्क पाउडर, एडिबल ऑयल, ये सब मंगवाना पड़ता था, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए इतना हमारे यहाँ होता ही नहीं था. जो चीज़ें लूटनी थी वो ब्रिटिशर्स लूट के चले गए थे. तो एकदम कंगाल इंडिया भारत के नेताओं के हाथ में देके गए थे. Understood? Gradually we made green revolution, progress in green revolution. We also made progress in white revolution. तो दूध की और खाने पीने की हमारी समस्याएं हल हो गई. तो यहाँ उनके देश में भी ऐसा है. We were slaves for 200 years, they were slaves for 300 years. तो 300 सालों में ये ब्रिटिश लोगों ने बहुत कुछ लूट लिया था और इनको कंगाल कर दिया था. सो नाउ पॉलिटिकली दे आर फ्री. राजकीय तरीके से देखें तो उनके ऊपर कोई दूसरा रूल नहीं करता है, उनके लोग ही रूल कर रहे हैं, ये नेल्सन मंडेला और दूसरे मिनिस्टर्स, बराबर. बट ऑल द पीपल नाउ आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, फ्रॉम डिप्राइवेशन, फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सफरिंग एंड फ्रॉम जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन. वो वहाँ नहीं होगा तो दूसरे कंट्रियों में शायद होगा उनके लोगों के साथ. ओके, नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. दिस पॉइंट ही स्ट्रेसेस. ये बात ये थोड़ी भार के साथ बोलना चाहता है कि हमारे ये देश में अभी आज़ादी मिल गई है, आज के बाद हमारे देश में किसी भी व्यक्ति का ऑपरेशन दूसरे व्यक्ति से नहीं होगा. ऑपरेशन हियर मीन्स उसके ऊपर जुल्म कोई दूसरे व्यक्ति से नहीं होगा. ओके, द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, दिस अचीवमेंट दैट व्हाट इज दैट, देयर इंडिपेंडेंस. तो बोले ये हमारा इंडिपेंडेंस का जो अचीवमेंट है उसका सन कभी भी डूबेगा नहीं, यानी वी विल ऑलवेज रिमेन फ्री, वी विल नेवर अगेन बिकम स्लेव्स. ओके, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका. लेट फ्रीडम रेन यानी फ्रीडम यहाँ राज करने दो, फ्रीडम को यानी आज़ादी को भले राज करने दो, आज़ादी रहनी चाहिए यहाँ, इंडिपेंडेंस लोगों का रहना चाहिए. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, वेयर ही talks about the grand celebration. Here his speech gets over. Now we come to know what happens in the celebration. So all those things I have written over here. The people come and perform, then the army people, air force people, and then they come up with two national anthem. One sung by the white people, another sung by the black people. तो तुम लोग बोलोगे कि सर अभी भी डिस्क्रिमिनेशन तो दिखता ही है ना, नेशनल एंथम हर एक देश का एक ही होता है, यहाँ दो क्यों? तो द पॉइंट इज दे वांट टू कंसिडर ब्लैक इक्वल टू वाइट या तो वाइट इक्वल टू ब्लैक. इसलिए जैसे बोले हम अपना नेशनल एंथम गा सकते हैं तो ब्लैक लोग भी अपना गा सकते हैं, या तो ब्लैक लोग गा सकते हैं तो वाइट भी अपना गा सकते हैं.
both have the right over the land of South Africa. Okay. A few moments later, we all lifted our eyes in awe. In awe means in wonder, in surprise. हम सब लोग जो वहाँ बैठे थे गेस्ट, ये 140 कंट्रीज़ के लीडर्स, डिग्निटरीज और दूसरे लोग जो गेस्ट के रूप में वहाँ बैठे थे, सब ने अपनी आंख उठाई, क्यों? ऊपर देखते हैं। एज अ स्पेक्टेक्युलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। ये नज़ारा हमारे 15 अगस्त के प्रोग्राम में भी होता है, हमारे आज़ाद दिन के सेलिब्रेशन के प्रोग्राम में होता है। एयरफोर्स वाले अपने करतब दिखाते, वैसे ही यहाँ वो दिखा रहे तो सब लोग नीचे बैठे हुए ऊपर देखते हैं। ओके, स्पेक्टेक्युलर अरे, अरे मीन्स डिस्प्ले ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, जेट्स यानी जेट प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। This celebration is taking place in the amphitheater of the Union Building in Pretoria. तो उसके ऊपर ही ये प्लेन्स उड़ रहे हैं। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, प्रिसीजन यानी एग्जैक्टनेस। तो ये एयरफोर्स वालों का, आर्मी वालों का, नेवी वालों का जो परफॉर्मेंस होता है वो एकदम डिसिप्लिन्ड परफॉर्मेंस होता है, एकदम एग्जैक्ट परफॉर्मेंस होता है। तो यहाँ ये बोलता है इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। वो ऐसा करके क्या है, अपनी वफादारी दिखाते हैं कि अब तक हम वफादार रहे थे वाइट लोगों के लिए, अब गवर्नमेंट जो भी आएगी उसका हमारा तो ड्यूटी क्या है, जो भी गवर्नमेंट आए उसको हमें वफादार रहना है। तो नाउ ब्लैक पीपल्स गवर्नमेंट इज देयर, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट इज देयर, सो वी विल बी लॉयल टू देम ऑल्सो। सो दैट पॉइंट दे वर शोइंग थ्रू देयर परफॉर्मेंस। ओके, to a new government that had been freely and fairly elected. So that's what they were showing their loyalty yani wafadari to all this newly elected government. Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by. क्या बोलते हैं, अभी थोड़े मोमेंट पहले ही साउथ अफ्रीका के, थोड़ी टाइम पहले ही साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स के जो लोग हैं, पुलिस के जो फोर्स है, उन्होंने अपने ये बेडेक्ट क्या है, उनके शर्ट पे वो बटन लगे हैं, रिबन्स लगी है, मेडल्स और रिबन्स जो उनके क्या है कर्तव्यों के, उनके पराक्रमों के लिए मिला है, उनकी बहादुरी के लिए मिला है, बराबर। सैल्यूटेड मी एंड प्लेज देयर लॉयल्टी। यही लोगों ने अभी थोड़े मोमेंट पहले ही, थोड़े टाइम पहले ही मुझे सैल्यूट किया है और अपनी वफादारी दिखाई। I was not unmindful of the fact, यानी I was quite aware of the fact. Unmindful of means conscious of, not unmindful of यानी हमें उसका अपोजिट मीनिंग लेना है कि मुझे ये बात का पूरा अंदाजा है, पता है कि that not so many years before, अभी थोड़े सालों पहले भी नहीं, बस थोड़े साल पहले ही, they would not have saluted but arrested me, बराबर। 2 साल पहले तो यही लोगों ने मुझे अरेस्ट किया होता, क्योंकि तब क्या है, वाइट रूल था। आज वही लोग, मैं प्रेसिडेंट बना तो मुझे सैल्यूट कर रहे। ओके, फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला, शेवरॉन यानी वी शेप पैटर्न ऑफ इम्पाला जेट्स, ये जेट्स का नाम है, हमारे है ना एयर इंडिया, ओके, इंडियन एयरलाइंस, वैसे ये इम्पाला जेट्स left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. Now along with the independence, along with their freedom, their flag also has changed a bit. उसमें 5 कलर है, तो वो ऊपर से प्लेन गए, वो प्लेनों ने पीछे 5 कलर का धुआं छोड़ा। ओके, लेफ्ट अ स्मोक यानी धुआं, ट्रेल यानी उसका पट्टा, धुएं का पट्टा छोड़ा। कौन से? ब्लैक कलर का, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का और गोल्ड कलर का। ऑल दिस 5 कलर्स यू विल फाइंड इन द साउथ अफ्रीकन फ्लैग। एंड देन वी कम टू द नेशनल एंथम। ओके, द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स। ये मेरे लिए एक सिंबॉलिक बन गया, बिकॉज ये पर्टिकुलर डे पे 2 नेशनल एंथम बजे थे। एंड द विजन ऑफ द वाइट सिंगिंग एनकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टेम। तो ये दोनों के अलग अलग नेशनल एंथम है। वाइट लोगों का है एनकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका और ब्लैक लोगों का है डाइस्टेम।
तो दोनों नेशनल एंथम्स वर संग on this particular day. The old anthem of the Republic, a diasteme is actually, both are nothing but the old anthems of Republic of South Africa. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem. अब ये नया ही हुआ है, तो दोनों ग्रुपों में से एक दूसरे का एंथम का वर्ड्स किसी को नहीं आते थे, बट ये बार बार गाया जाएगा तो सबको ये वर्ड्स भी आ जाएंगे. अंडरस्टूड. Although that day neither group knew, यानी white people did not know the words or wordings of the black people's national anthem, and black people did not know the wordings of the white people's national anthem. Knew the lyrics of the anthem they once despised, क्योंकि वो ये नेशनल एंथम को, एक दूसरे के नेशनल एंथम को अभी तक डिस्पाइज कर रहे थे, हेट कर रहे थे. बराबर. They would soon know the words by heart. देखो, क्योंकि अभी हर एक फंक्शन पे ये बजेगा नेशनल एंथम. बराबर. सो दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट इन वेरी शॉर्ट टाइम बोथ द ग्रुप्स वुड नो द वर्ड्स ऑफ नेशनल एंथम ऑफ ईच अदर. ओके. ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वाज ओवरवेल्म्ड मीन्स ओवरव्यूड, ओवरऑड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री. ओके. ये दिन पे मुझे थोड़ा हिस्ट्री का भी ख्याल आ गया था कि अभी तक हमारी हालत क्या थी. Now he takes us back into the history. He takes us back into the flashback. In the first decade of the 20th century, now 20th century begins from 1900 onwards. 1900 से 1999 तक क्या होता है, ये 20th century. ओके. 20वीं शताब्दी, उसके बोले फर्स्ट डिकेड में, यानी 1901 to 1910. A few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth. ये टाइम तब था जिसके थोड़े टाइम पहले ही. बराबर. अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो-बोर वॉर, ये एंग्लो-बोर वॉर हुआ था उसके थोड़े टाइम के बाद, और उनके बर्थ के थोड़े टाइम पहले ही क्या हुआ था. द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस and erected a system of racial discrimination against the dark skinned people of their own land. तो साउथ अफ्रीका में वाइट और ब्लैक दोनों रहते थे, और वाइट पीपल ब्लैक पे राज करते थे. तो ये फर्स्ट डिकेड, 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में, यानी 1901 से 1910 के बीच में ही इन्होंने ये अपने डिफरेंसेस ब्लैक पीपल से कर दिए और एक नई सिस्टम लाए. दैट इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड. अंडरस्टूड. इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेस देख के उनके साथ भेदभाव करो, ऐसी सिस्टम लाए. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन. ये जो पॉलिसी लाए, वो पॉलिसी ने वर्ल्ड में अभी तक ऐसी हार्श में हार्श, बराबर, बिटर में बिटर सिस्टम देखी नहीं होगी, और ऐसी सोसाइटी की रचना की जो बहुत हार्श थी, बहुत इनह्यूमन थी. इनह्यूमन यानी अमानवीय, जिसमें एक साइड के लोगों को तो अन्याय ही होता है, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, बराबर, और एक साइड एंजॉय करती है. नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी यानी 1991 से 2000 तक, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, यानी वो 80 साल के हुए हैं. 8th डिकेड, फर्स्ट डिकेड यानी 10 ईयर्स, 7th डिकेड यानी 70 ईयर्स, तो 8th डिकेड यानी उनके 80 साल हुए तब. दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर, दैट सिस्टम हैज बीन रिमूव्ड फॉर एवर. ये 80 साल तक तो चली, बराबर, अभी उसको ओवरटर्न किया गया है, उसको कंप्लीटली उखाड़ के फेंक दिया है. एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल द पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर ऑफ देयर स्किन. उसकी जगह दूसरी सिस्टम आई है. उसने क्या किया है, उसने सभी के हक और स्वतंत्रता को स्वीकार किया है, सभी लोगों के, चाहे वो ब्लैक हो, वाइट हो, कलर्ड हो, ये सभी लोगों के हक और स्वतंत्रता को स्वीकार किया है, उनके स्किन के कलर को ध्यान में लिए बगैर. ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर वी स्टॉप. In my next video, we will continue the remaining lesson. Remaining lesson talks about nothing but how the South African people struggled, how many of them lost their lives, what injustice and this one slavery they had to face, and how as a boy when Nelson Mandela was growing, he came to know
that he was not free, and how his hunger for freedom became more and more intense. So that all we will see in my next video. Till then, all this information, students, keep in mind. Remember, you will definitely be asked a few questions from this lesson. It may be the first question, comprehension also. So here certain things you will have to keep in mind. They won't be given in the paragraph. You will have to answer them from your understanding. Till then, goodbye. Have a nice day.